Dr. Mehtab, Dean Pharmacy School, Mr. Kazim Ali, Patron, which is Dean, dear students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's my privileged honor to talk to you. 60% of my nation is actually youth. I can feel the strength and the vibes that you carry for our tomorrow. The subject of thalassemia that we fight in JZT today is very important to understand its base, with its base and with its effects for tomorrow. So coming over to the actual topic, that is thalassemia. Why this occurs? What Pakistan is doing about it? Since when its awareness started coming into our society? What are still we lacking? What we need to do? Why should we donate our blood? Why do they need blood? Patient sitting right in the second row in front of you. So we need to understand this focus. I'll try to be brief, to the point, and in the end of my talk, I shall also be available for your question and answer session if somebody has still something to ask. I'll be happy to take on that such shoes. Now, what is thalassemia? What is its history? Actually, it started somewhere 5,000 years back on the Mediterranean coasts with land. Everybody has its defensive system, and that defensive system came up with a new change, sickness called thalassemia. How it reached us here in Pakistan, in India, Indo-Pak, we call it today. It is believed that when in the past we had fights, Iskandar-e-Azam bhi yahan pe aaya, uske soldiers bhi aaye, and when they attacked us, तो उस ज़माने में ये नहीं होता था कि लोग सारे के सारे वापस चले गए, so they stayed on as well. And when they stayed on, married, and kids that started spreading around here. फिर intermarriages के साथ मज़ीद वो spread out होता रहा, families to families, men to women, women to men. This kept spreading. Awareness थी नहीं. इसको पुराने ज़मानों में कहा जाता था, बूढ़ियाँ कहा करती थी, इसको पीलिया हो गया है, पीलिया पै गया, the child would die. No one knew इसको actual मसला क्या है. Thalassemia basically genetic disorder है. ये बीमारी नहीं है. I don't take it as a बीमारी. कोई साइंस इसको बीमारी नहीं कहता. Inability of the body है, जिसके अंदर blood cells नहीं बनते या कम बनते. इसके मुख्तलिफ इकसाम हैं, minor and major. Major has got another, 3 types. Intermediate, major and minor there as well. उसमें minor का मतलब यह है कि साल में एक बार खून लगेगा. Intermediate का मतलब यह है कि थोड़ा सा frequency बढ़ जाती है. Maybe after 3 months, after 2 months, or even 6 months. You need transfusion of the blood. और मेजर का मतलब यह है कि they might be coming for blood transfusion twice a month or even thrice a month, depending on the response of their body. बालों का खून बहुत कम बनता है और रेड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं होती, which is mere requirement of every body. I'm told most of you are from pharmacy, so I'm sure I don't need to get into the details of what blood does in our body. So, इस वजह से थैलेसीमिया बढ़ता जाता है.
क्या ये HIV की तरह या हेपेटाइटिस की तरह एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है? द क्वेश्चन आंसर इज नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि जेनेटिक है, जीन्स के साथ आता है। और अगर दो माइनर शादी करें, यानी कि मियाँ और बीवी, बोथ स्पाउस, अगर वो शादी करें और वो माइनर हो, तो उनके बच्चों में देयर इज अ चांस, which we say calculative है, 25% चांस है उनका बच्चा हो सकता है थैलेसेमिक मेजर, 50% चांस ये है कि उनका बच्चा माइनर हो सकता है, एंड सिमिलरली 25% चांसेस आर कि ही विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल, उसकी बॉडी को कोई मसला नहीं है। दिस इज द रीजन द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नाउ हैज ऑलमोस्ट फाइनलाइज द बिल, जो इसी वक्त भी पास हो जाएगा, कि प्री मैरिज टेस्टिंग जरूर करेंगे। CBC होती है, वो 2 cc आपका ब्लड चाहिए होता है, और उसका भी तरीका ये है कि मेल स्पाउस गोज फॉर द टेस्टिंग, अगर वो क्लियर है तो फर्दर टेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन अगर वो माइनर आ जाता है तो उसके होने वाले स्पाउस का भी टेस्ट किया जाता है। अगर वो भी नॉर्मल हो तो बात खत्म, लेकिन अगर वो भी माइनर आ जाए तो फिर उनको अवेयरनेस दी जाती है कि इफ यू बोथ मैरी देयर आर 25% चांसेस यू विल हैव योर चिल्ड्रन टर्मिनली थैलेसीमिया मेजर। तो बेहतर यह है कि आप किसी और जगह पे शादी कर लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ सोशल, जैसे डॉक्टर काजिम साहब फरमा रहे थे कि हमारे यहाँ सोशल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, हमारी बाइंडिंग्स फैमिलीज में डिफरेंट होती हैं। समटाइम्स द बॉय गर्ल्स दे से वी लाइक ईच अदर, वी लव ईच अदर, वी डोंट वांट टू चेंज आवर स्पाउस, व्हाट द हेल आर वी टॉकिंग अबाउट? सो इन दैट केस एज वेल वी से ओके यू मे मैरी, बट देन यू हैव अनदर इशू कि जब भी प्रेगनेंसी होगी यू नीड टू गेट बैक टू अस, गेट योरसेल्फ टेस्टेड, और वो फर्स्ट 20 वीक्स में यू कैन गो फॉर इट, दैट्स व्हाट द लॉ सेज। और ये आई एम टॉकिंग ऑफ इस्लामिक लॉज। इस्लामिक लॉज में अप टू 20 वीक्स it can be, you know, water, but after that it's not possible. So pregnancy का नॉर्मली चौथे हफ्ते में पता चलता है। So in that case टेस्टिंग की जाती है, सीरियस टेस्टिंग होती है, और उससे पता चल जाता है कि बच्चा नॉर्मल है, माइनर है या मेजर है। Only in case of major थैलेसेमिया they are advised, counseled, कि अगर आप इसको कैरी ऑन करेंगे तो ये बच्चा अगर दुनिया में आएगा, आपने सारी उम्र इस बच्चे के साथ नहीं रहना। इस बच्चे को हर महीने कम से कम 2 बार ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके साथ चिरेशन भी होगी, फेरिन लेवल बढ़ेगा, बिकॉज एवरी कंटेंट ऑफ ब्लड इज 70% आयरन डिपॉजिट इन इट, तो उसको भी आपको कंट्रोल करना पड़ता है। दैट्स वेरी पेनफुल, यू नो, प्रोसेस। उसमें आप 7-8 घंटे वेट कर इंजेक्शन लगवाते हैं कंट्रोल रेट के साथ, ताकि वो आपका आयरन बॉडी से निकल जाए। नाउ हैविंग सेड ऑल दैट, इसका कोई इलाज है? इसका एक इलाज है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, अब वेरी एक्सपेंसिव। इसके लिए आपको डोनर की जरूरत होती है, फिर वो मैच करना हो, मोस्टली फैमिलीज के अंदर हो भी जाता है, तो देन इट कॉस्ट इवन टुडे more than 10 million in Pakistan. But then what are the chances that we go for it? Only 30% chances of recovery from this issue. 70% chances are that you will continue with the same problem or even survive later. So people prefer going for the transplant in the world as well. इसकी रेशो क्या है? हमारे यहाँ कितने लोग जो इस बीमारी के शिकार हैं? ओवरऑल 5 से 6% को थैलेसीमिया होता है इस वक्त, जो हमारी जनरल कैलकुलेशन है। लेकिन थैलेसीमिया माइनर जो हैं, दे आर अबाउट 100 to 120,000 एज ऑफ टुडेज रजिस्ट्रेशन ऑल ओवर द पाकिस्तान।
Fatmid is looking after almost 22,000 of a major work across India. हम 9 जगहों पे 9 शहरों पे बैठ के ही काम कर रहे हैं। इस सारी चीज़ों का फ़ायदा क्या है कि हम इस फाइट को क्यों आगे लेकर चल रहे हैं? ये अवेयरनेस कब शुरू हुई? वी स्टार्टेड इन 78। आगा जीवा ने इस ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था 78 में इन कराची, और वो कम्युनिटी बेस्ड थी। बट लेटर ही डिसाइडेड कि ये कम्युनिटी बेस्ड नहीं चलेगा, दिस इज नीड ऑफ द नेशन। सो ही ओपन अप। उन्होंने इसको एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाया जिसके अंदर बहुत रिनाउंड लोग हैं, लाइक मिसेस कसूरी फ्रॉम हियर, शाहिद सेठी साहब हैं, आरिफ हबीब इज वन नेम दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड, ऐसे मुनीर हैं। तो बहुत बड़े बड़े जो सनतकार हैं, बिजनेसमैन हैं, और जनरल मोइनुद्दीन हैदर रिटायर्ड एक्स इंटीरियर मिनिस्टर एज वेल एंड गवर्नर टू सिंध प्रोविंस, ही इज हेडिंग एज चेयर। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? प्योरली चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। वी प्रोवाइड ऑल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडिंग मेडिसिन, ट्रांसफ्यूजन, कलेक्शन ऑफ ब्लड से लेकर एंड तक। इसके ऊपर तकरीबन एक बच्चे का जब आप ट्रांसफ्यूजन करते हैं ब्लड का, इट कॉस्ट यू ऑलमोस्ट, डिपेंडिंग ऑन ब्लड कितना दफ़ा आप कर रहे हो, और एक बच्चे का एक महीने का खर्चा तकरीबन 25 से 30 हज़ार लगता है। उसमें उसकी मेडिसिन भी शामिल है, ब्लड कलेक्शन भी शामिल है, उसके अंदर उसको जो चलेशन किया जाता है दैट इज ऑल्सो। एक शख्स जिसके 3 या 4 बच्चे, वी हैव बी केसेस सच काइंड, जो एक बंदे के 3 बच्चे हैं, तीनों थैलेसेमिक हैं और तीनों मेजर हैं। अब वो तीनों ही यहाँ पे आके हर महीने उनकी ट्रांसफ्यूजन की जाती है। सो कैन यू अफोर्ड दिस? Is a poor person with maybe 150,000 even if he is earning. Can he afford 3 or 4 children, or even 1 child every month with 30,000 spending on that? It is not possible. मैंने बड़े बड़े अच्छे खासे खाते पीते घर वालों को भी अफोर्डेबिलिटी करते नहीं देखा। They cannot really afford. तो वहाँ पे हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस आके आती हैं, दे वर्क फॉर देम, दे प्रोवाइड देम दिस असिस्टेंस। गवर्नमेंट इज टेकिंग पार्ट ऑलमोस्ट 12 to 13% एज ऑफ टुडे। वो हमें हमारे टोटल जो स्पेंडिंग होती है उसकी 12 से 13% हमें देते हैं। इज दैट इनफ? आई डोंट थिंक सो। अब उसको बढ़ाकर ये सेहत कार्ड के इसमें शामिल किया गया है। Let's see how it turns out to be. लेकिन 12 सूरत और मौजूद है। This is our weak segment in the society. इस weak segment को आपकी जरूरत है। ब्लड ऐसी चीज नहीं है जिसे बाजार से खरीद के लगाया जा सकता। ब्लड ऐसी कमोडिटी नहीं है जो किसी लैब में तैयार हो सके। ब्लड हम सब के पास है। अल्लाह पाक ने निज़ाम ऐसा रखा है कि आपकी बॉडीज़ के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ब्लड मौजूद है, विच इज़ डेफिनेटली फार मोर देन 1 पिल दैट वी टेक। और वो एक बोतल से, अभी आपको इंट्रोडक्शन में बता रहे थे कि एक बोतल आपकी 3 इंसानों की जान बचा सकती है। रेड सेल्स, प्लाज्मा जो हेमोफीलिया को लगाते हैं, और डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट्स लगाए जाते हैं। ये 3 प्रोडक्ट्स आपके ब्लड से आते हैं। लेकिन एक बच्चा जिसको हर महीने 2 दफ़ा ब्लड लगता हो, यानी 2 बोतलें चाहिए हों, आप 3 महीने में 1 ब्लड की बोतल दे सकते हैं। सो उस बच्चे को कम अज़ कम 6 डोनर चाहिए होते हैं इस टाइम स्पैन में, व्हेन यू आर अगेन रेडी टू डोनेट योर ब्लड। हमारी organizational requirement is almost over 120,000 every year that we need the blood. अब इसको कैसे हम पूरा करें?
जब तक यूथ सामने नहीं आती। हमारे पास 18 साल से लेकर 60 साल तक जो लोग आके ब्लड डोनेट करें, 3 महीने में आप एक बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि 1 साल में आप यू कैन डू इट 4 टाइम्स। इस ब्लड को देने से आपको क्या फायदा होगा? जैसे लास्ट सेगमेंट ऑफ माय टॉक जस्ट टचिंग अपॉन। देखिए, घरों में आपने देखा होगा खवातीन बहुत नॉर्मली दे डू कि पौधा लगा लेते हैं, मतलब बोतल में लगा लेते हैं। कुछ अरसे बाद आप देखेंगे उसका पानी गदला हो गया है और वो मुरझाने लगता है। ऐसी सूरत में वो खातून क्या करती हैं कि उस पानी को बदल देती हैं, वो पौधा फिर खिल उठता है। The same thing is with your body. आपने ब्लड दिया, ब्लड आपकी बॉडी में बनता रहेगा, लेकिन जब आपका वन फिल्म निकलता है तो वो अपनी फुल जो उसकी कैपेसिटी है उसके ऊपर ब्लड बनाना शुरू करेगा। फ्रेश ब्लड जब आपकी बॉडी के अंदर दोबारा आता है, आपके तमाम ऑर्गन्स रिफ्रेश हो जाते हैं। आपको कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है, आपको बीपी नहीं होता, आपके दिल की बीमारियों से आप बचे रहते हैं, सरतान जैसी यानी कैंसर जैसी मूजी बीमारी से आप बच जाते हैं। आपको जो इसके अंदर कोगुलेशन होती है, कभी आप किचन की नाली को देखिए जिसके अंदर पानी बहता है, वहाँ पे साइड पे चिकनाइयाँ लगी जाती हैं। सो यू नीड टू क्लीन दैट आउट। तो जब आपका फ्रेश ब्लड बनता है तो ऐसी कोई चीज़ आपकी बॉडी में फासिल मादा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी फसल लगाने का एक तरीकाकार मौजूद था जो अहादीस से मिलता है कि आपने कई दफ़ा अपने जिस्म में रग के ऊपर फसल लगवाई और खून निकाला, और वो सुन्नत में भी आता है। और वो उस ज़माने में चूँकि ट्रांसफ्यूजन नहीं होती थी तो ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं होता था, इसलिए वो खून इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन आज वो ट्रांसफ्यूजन होती है, और हमें अपनी सोसाइटी में ऐसे तबके के लिए कि जो जिनको उनके रिश्तेदार भूल बैठते हैं, जब वो कॉल करते हैं तो उनके रिश्तेदार समझते हैं कि शायद खून के लिए फ़ोन कर रहा है, so they don't even pick up the call. We need to come out as a nation. ये हमारे किसी बहन भाई के बच्चे हैं, अल्लाह ने आज उन्हें ज़रूरतमंद बनाया है। आज उनकी ज़रूरत अगर हम पूरी करते हैं तो कल हमारी ज़रूरत अल्लाह अपने रस्तों से पूरी कर सकता है। This was all about thalassemia, what we are doing in फातमी, और हमारा काम प्रिवेंशन का नहीं है, यानी कि जो मैंने शुरू में आपको गुजारिश की थी, दैट वाज अबाउट प्रिवेंशन प्लान, कि उसमें टेस्टिंग होती है और टेस्टिंग के साथ पता चलता है कि कोई इशू नहीं है तो उनकी शादियों में शादी से पहले वो कराएंगे। उसके बाद प्रेगनेंसी केस में अगर टेस्टिंग हो, सीरियस टेस्टिंग हो, वो भी प्रिवेंशन का प्लान है। फातमी टेक ऑन करता है जब कोई बीमार बच्चा सामने आ जाता है, मुस्तनद हो जाता है, सनद मिल जाती है कि बच्चा थैलेसेमिक है या हेमोफिलिक है, वहाँ से हम टेक ऑन करते हैं। इसके अंदर उसे फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है। ही रिमेन्स एब्सोल्युटली फाइन अदरवाइज, सिवाय ब्लड लेने। जैसे एक शुगर का पेशेंट हो, डायबिटिक हो, और वो इंसुलिन लगा के अपनी ज़िंदगी गुजारता है, स्टूडेंट के तौर पर पढ़ाई करता है, बैंकों में काम कर रहे हैं, सिमिलरली थैलेसेमिक और ऑल्सो वर्किंग द सेम। यू माइट नॉट नो इट, हो सकता है आपके दरमियान में भी कोई बैठा हो, बिकॉज दे रिमेन लिटिल शाय टेलिंग पीपल दैट दे हैव दिस प्रॉब्लम। दे आर एब्सोल्युटली फाइन, पता नहीं चलता, चेहरे से अंडर ग्रोथ से पता चल रहा है। So thank you so much for bearing me here, listening me. I'm sure you can take this what you heard, learn,
further to your family, friends, and people around you. Thank you so much. Assalamu alaikum.